السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے 34ویں نیشنل گیمز کے حوالے سے، موسم کا احوال بتا رہے ہیں۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ گوادر اور سرحدی علاقوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے وعدے کی تکمیل۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اضافی 100 میگا واٹ گب پلان ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح۔ منصوبہ 4 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ ایران سے درآمد بجلی کی مجموعی مقدار 204 میگا واٹ ہو گئی۔ پاکستان ایران بارڈر مارکیٹ منصوبے کا آغاز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے منپشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ دونوں رہنماؤں کا مارکیٹ کے مختلف حصوں کا معائنہ، دوستی کی علامت کے طور پر پودا بھی لگایا۔ بارڈر مارکیٹ کے قیام سے دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا۔ مقامی افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اسمگلنگ کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان مزید 5 بارڈر مارکیٹس کے قیام پر کام جاری۔ پاکستان اور ایران کی قیادت کا مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ بارڈر سیکیورٹی میکانزم کو مزید مربوط بنایا جائے گا۔ شمسی توانائی کے شعبے میں بھی تعاون بڑھایا جائے گا۔ مختلف شعبوں میں مشکلات اور رکاوٹیں دور کریں گے۔ خطے کے تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا خطاب۔ ایران کے ساتھ تجارتی حجم کو $5 ارب سالانہ تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ آزادانہ تجارت کے معاہدے کو جلد حتمی شکل دیں گے۔ بندرگاہوں اور بحری تعاون میں اضافے کے لیے متعدد اقدامات پر بات چیت جاری ہے۔ عالمی برادری کو مشکل وقت میں افغان عوام کا ساتھ دینا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کو انٹرویو۔ عمران خان کی فسطائیت اور ملک پر حملہ آور ہونے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ آئندہ سیاست کے لبادے میں کوئی ملک دشمنی نہیں کر سکے گا۔ بندوبست کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کسی کو شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی جرت نہ ہو۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ 9 مئی اصل میں نوجوان نسل اور پاکستان کو لڑانے کی مذموم سازش تھی۔ مٹھی بھر مسلح جتھوں کو حملوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ توشہ خانہ چور نے ملکی معیشت، کاروبار اور روزگار کو تباہ کیا۔ نوجوانوں کو کسی شرپسند، فتنہ پرور سیاسی ٹھگ کی خواہشات کی بھٹی کا ایندھن نہیں بننے دیں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ قومی املاک اور عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی۔ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پنجاب حکومت کی زمان پارک میں موجود شرپسندوں کی حوالگی کی ڈیڈ لائن ختم۔ افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، مختلف شہروں میں ریلیوں کا انعقاد۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ قومی املاک کو نشانہ بنانے والوں سے کوئی رعایت نہ کی جائے، قرار واقعی سزائیں دینے کا مطالبہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ عسکری تنصیبات پر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ جیو فینسنگ کے ذریعے حملہ آوروں اور زمان پارک میں موجود لیڈرشپ کے درمیان رابطوں کے ثبوت ہیں۔ سیاست کی آڑ میں گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िद्जो की वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात, मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की 9 मई के जलाओ घेराव और तशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत, बलोचिस्तान के मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू। 9 मई के वाक़यात से दुश्मन के एजेंडे की तकमील की गई। इस एजेंडे के साथ नहीं चल सकता। मलिक अमीन असलम ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। जनूबी पंजाब से भी 7 साबिक अरकान असेंबली और दीगर रहनुमाओं का पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, नैब नोटिस पर इमरान खान और बुशरा बीबी पेश न हुए, वकला ने नोटिस का जवाब जमा करा दिया। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग, एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीकुर रहमान शहीद, ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट, इस्लामाबाद से 26,000 आज़मीन हज की इमिग्रेशन होगी। लाहौर और कराची के बाद कोयटा, मुल्तान और पिशावर एयरपोर्ट्स को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने का जायजा। सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन को कुर्बानी की मद में मजीद रकम अदा नहीं करना होगी। वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद। हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 21 मई को मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। आलमी बिरादरी की तवज्जो मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों और भारतीय फौज के मजालिम की तरफ मबजूल कराएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से तहरीक आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत के अज़्म का अदा किया जाएगा। G20 इजलास से कबल मकबूजा कश्मीर फौजी छावनी में तब्दील, बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़, काले कवानीन के तहत मुकदमात का इंदराज। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। यहूदी आबादकारों का इसराइली फौज की सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा पर धावा, मुतअद्दिद नमाजी जख्मी। काबिज फौज की मगरबी किनारे के इलाके नाबलुस में भी अंधाधुंध फायरिंग। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई, आइसलैंड में यूरोपीय काउंसिल का इजलास। जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर, यूक्रेनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स, पाकिस्तान आर्मी ने रग्बी फाइनल जीत लिया। विमेंस हॉकी में आर्मी और वापडा, जबकि कबड्डी में आर्मी और नेवी के फाइनल में रसाई। पॉइंट्स टेबल पर आर्मी 8 तिलाई, 11 चांदी और 1 कांसी का तमगे के साथ सरे फहरिस्त। Gundogan, Bernardo Silva, deep breath. और यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के दरमियान 10 जून को इस्तांबुल में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी की रियल मैड्रिड को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के पहले 12 साल नई जिद्दत के साथ सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत और तजर्बाकार टीम के हमरा अब नई मंजिलों की तरफ गामज़न। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें www.metrowatch.com.pk। इस एम्बुलेंस में था एक जान बलब मरीज जो चाहता था किसी अस्पताल तक रसाई। तकलीफ की शिद्दत से तड़पते इस इंसान को तुमने मजीद अजियत और परेशानी से दो चार किया। सियासत की आड़ में एम्बुलेंसों को जलाकर इंसानियत के तकद्दुस को तार तार किया।
सब याद रखा जाएगा। ये कौम भूलेगी नहीं, ना भूलने देगी। इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत से अपनी आन, अपना पाकिस्तान बचाएगी। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 100 मेगावाट गबत बोलान बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मंसूबे की अपग्रेडेशन 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुई है। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर गबत बोलान ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया। 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ईरान से 100 मेगावाट बिजली दरामद की जा रही है। इस मंसूबे के आगाज से ईरान से बिजली की दरामद 204 मेगावाट हो गई है। ये मंसूबा गवादिर की बिजली की मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा करने में मुआविन साबित होगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंसूबे की तकमील में जाती दिलचस्पी लेने पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क मोहब्बत और अखुवत और भाईचारे के रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। आज हमने امروز ما पशीनमंद मार्केट का इफ्तिताह किया बाजार मर्ज را افتتاح کردیم और इस तरह की मजीद मार्केट्स 6 تا دیگر मजीद बनाई بازار जाएंगी دیگر और इस निज़ाम से و از این سیستم न सिर्फ نه فقط पूरे इस खित्ते में تمام این منطقه खुशहाली और तरक्की का خوشحالی و پیشرفت नए सफर का आगाज होगा صورت میگیرد و یک बल्कि ये آغاز سفر جدید پیشرفت است संग मील بلکه है این یک ईरान संग और راه است पाकिस्तान के بین ایران و پاکستان तजारती रवाबत में। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म का इजहार किया कि पाक ईरान बॉर्डर को तरक्की और खुशहाली और सलामती की इलामत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से मरबूत इकदामात उठाए जाएंगे। हमारी जो پیوسته‌اند तजारत اما تجارت ما بامی सरमायाकारी और سرمایه کاری باهمی ما و در زمینه های مختلف बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को که یک نوع مکانیزم मजीद امنیت مرزی را باید اون را قوی ताकि خواهیم کرد जो تا اینکه दोनों ममालिक هر के دو ممالک दरमियान کنند हमारी मोहब्बत اگر کسی می خواهد برادری که و دوستی بین में रखना عشق و डालना برادری و محبت ما उनके तमाम अज़ाइम رخنه को پیدا کند खाक में मिलाया ما जाए। باید از ये दो برادر ममालिक و این دو برادر ممالک और हमसाया کشور و این دو کشور همجوار بین این دو کشور همجوار इस सफर को در این سفر बड़ी तेजी से ما ये मनाजिल तय با करें। تیزی वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे ईरानी सदर ने कबूल कर लिया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान की सलामती को ईरान की सलामती करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान का ताउन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। दोनों मुल्कों को साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देना है। خدا قوت بگیم به همشون. پیامش پیام امنیت. Iran and Pakistan are exemplary ones. These relations are improving day by day. Currently, there is a capacity of 100 megawatts of electricity, but this capacity can be increased for the exchange of energy between the two countries. ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे को मुकम्मल करने पर तवानाई के वजीर खुरम दस्तगीर और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। امنیت می‌بینیم و مرز رو ما یک فرصت تلقی می‌کنیم. Our country it produces and exports those items, and good progress has been made in this field, and we are set to further deepen our relations. And we inaugurated one border market in the no man's land, but 6 other border markets are being prepared as well. Efforts have been made to change it into a knowledge-based sector, the energy sector. तवानाई के वजीर इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की क़ियादत में ये मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया।
मंसूबे से गवादर में तवानाई की मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी होंगी। ये मंसूबा दोनों मुल्कों की दोस्ती का आकाश है। 2009 से ताखीर का शिकार गब्बत बुलान बिजली ट्रांसमिशन लाइन का 30 किलोमीटर का हिस्सा एनटीडीसी ने रिकॉर्ड मुद्दत में कामयाबी से मुकम्मल किया। इस मकसद के लिए 132 केवी गवादर जेवानी ट्रांसमिशन लाइन को पाक ईरान बॉर्डर से 200 केवी ट्रांसमिशन लाइन में तब्दील कर दिया गया। मंसूबे की बदौलत अब ईरान से बिजली की दरामद 204 मेगावाट हो गई है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दो तरफा इक्तिसादी ताउन को वसअत देने के लिए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर मार्केट मंसूबे का आगाज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मनपशीन बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहदी इलाके रदीक में कायम की गई मनपशीन बॉर्डर मार्केट के इफ्तिताह के लिए पहुंचे तो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ्द का इस्तकबाल किया। विफाकी काबीना के अरकान वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया जो दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात की अक्कासी कर रहा था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने मनपशीन बॉर्डर मार्केट का बाकायदा इफ्तिताह किया। बॉर्डर मार्केट दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कायम की गई बॉर्डर मार्केट का दौरा किया और ताजिरों के साथ मुलाकात की। बॉर्डर मार्केट से दोनों अतराफ के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दोस्ती की अलामत के तौर पर आम का पौधा भी लगाया। हुकूमत 5 मजीद बॉर्डर मार्केट्स के क़याम पर काम कर रही है जिनको जल्द तिजारत के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान मनपशीन में मुश्तरका मार्केट के इफ्तिताह के बाद वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तिजारती माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने, ईरान से ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली की दरामद और शमसी तवानाई में एक दूसरे के साथ ताउन करने पर इत्तफाक किया। पाक ईरान सरहद पर अमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ मस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। हमें तिजारत, सरमायाकारी, IT और ज़राअत समेत दीगर शोबों में आगे बढ़ना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द उसको फाइनलाइज करेंगे इंशाअल्लाह। बिजली की ट्रांसमिशन के हवाले से ईरान से पाकिस्तान मिलकर आगे बढ़ें। CPEC के हवाले से भी वहाँ पर तजावीज़ पेश की। हम इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तेजी से कदम उठाएंगे। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ेगी जिसके लिए ईरान और पाकिस्तान मिलकर तरक्की और खुशहाली का पैगाम ला सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन के लिए वफूद का तबादला होगा। चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद फरोग मिले। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में पेशरफ्त इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए अहमियत की हामिल है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी अर्ना को खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान $5 अरब सालाना तिजारती हजम हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। सरहदी मंडियाँ दो तरफा तिजारत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगी। उन्होंने कहा कि मनपशीन बॉर्डर मार्केट और पुलान गबत तवानाई के मनसूबे मुश्तरका अज़्म के मज़हर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए हमें अपनी कोशिशों को तेज़ करते हुए दस्तयाब वसाइल को बुरुकार लाना होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बंदरगाहों और बहरी ताउन में इजाफे के लिए मुतादिद इक़दामात पर बातचीत जारी है। तमाम शोबों बिलखुसूस इलाकाई तिजारत, ट्रांजिट और बाहमी रवाबितकारी को वसअत देने के लिए काम जारी रखेंगे। खित्ते की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी को इस मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ तामीरी रवाबित नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि हमें आलमी बरादरी की तरजीहात की दर्जाबंदी के लिए एक मुतवाज़न नुक्ता नज़र की ज़रूरत है जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी, मनशियात की स्मगलिंग और जामे तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देना शामिल होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर गोहर एजाज की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने कपास की कम से कम कीमत तय करके टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने टेक्सटाइल के शोबे के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने मुल्क की माशी बेहतरी में टेक्सटाइल के शोबे के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने टेक्सटाइल शोबे के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भी हिदायत की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द ने सदर इरफान अहमद शेख की सरबराही में इस्लामाबाद में मुलाकात की।
वज़ीर ख़ज़ाना ने दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने और मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत माजी की तरह IMF के मौजूदा प्रोग्राम को भी मुकम्मल करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ बर वक्त पूरी की हैं और आइंदा भी करती रहेगी। वफ़द ने मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आइंदा वफाकी बजट तक के लिए तजावीज़ दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द की बजट तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत ताजिर बिरादरी की दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह आगाह है और आइंदा बजट में इन तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की फिस्तायत और मुल्क पर हमलावर होने का बंदोबस्त किया जा रहा है। बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी न करे और ना ही आइंदा शुहदा और गाजियों की यादगारों की कोई बेहुरमती कर सके। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान न्याजी ने सियासत का लिबादा ओढ़ कर मुल्क और अवाम को सजा दी। मुल्क की मईशत को छोड़ा न अवाम का रोजगार। बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा कोई ऐसी कोशिश न कर सके जो इमरान खान ने की। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने लोगों की बेटियों के घरों पर हमले कराए, बेटियों को वालिदैन के सामने गिरफ्तार कराया। जिस तरह इमरान खान मुल्क पर हमला आवर हुआ, ऐसा करने की किसी में कभी जुर्रत नहीं हुई। ये बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा किसी में भी मुल्क दुश्मनी करने की जुर्रत न हो। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की पूरे मुल्क में तंजीम नौ के अमल पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि 9 मई असल में नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मज़मूम साजिश थी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों के जरिए पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि खौफ का बुत खौफ खुदा इख्तियार करने से टूटता है, शहीदों के मुजस्समे तोड़ने से नहीं। फितने ने पूरे मुल्क खासतौर पर नौजवानों को झूठ बोल बोल कर वरगलाया, जहनों में नफरत की जहरीली फसल काश्त की। मरियम नवाज ने कहा कि मुआशरे को तखरीबकारी के असरात से पाक करना है। 60 अरब के चोर ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए नौजवान कारकुनों को तखरीबकार फोर्स बनाया। मरियम नवाज ने कहा कि MSF नौजवान नस्ल का हरावल दस्ता है। आप नजरिया पाकिस्तान के परचम बरदार हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह कौम के इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को मजबूत करेंगे। कौम की तकसीम खत्म, अमन और बर्दाश्त वापस लाएंगे, मईशत बहाल होगी, कारोबार फिर से चलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इजलास को बताया गया कि पंजाब में एक माह के अरसे में 50,000 से ज्यादा तलबा तालिबात की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया और मौजूदा हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी इंतजामात पर असर नौ नजरसानी करने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को एक सियासी जमात के 9 मई की दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद भी पेश किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 मई को एक सियासी जमात ने पूरी पाकिस्तानी कौम को शर्मसार किया और अस्करी तनसीबात पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि जियो फेंसिंग के जरिए हमलावरों और ज़मान पार्क में मौजूद सियासी लीडरशिप के दरमियान राबतों के सबूत सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सियासत की आड़ में घिनौना खेल खेला गया और इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन और जुर्रतमंदाना इक़दामात किए हैं। इलेक्शन कमीशन का मकसद आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन आम इंतखाबात का इनेकाद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं और न ही कोई सियासी मकसद है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि लाहौर पुलिस ने ज़मान पार्क से फरार होने की कोशिश करने वाले 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये तमाम दहशतगर्द लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की और मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में एक सियासी जमात की जानिब से मुल्क में सियासी कशीदगी में इजाफे, जलाओ घिराव और तशद्दुद की सियासत की मजम्मत की गई। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली के बदले इंतजामी और माली बेजाब्तगी के मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी नैब के तलबी नोटिस पर आज भी पेश नहीं हुए। नैब ने दोनों को आज सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी के J6 ऑफिस पेश होने का नोटिस जारी किया था। नैब ने इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली से मुतालिक 20 सवालों के जवाब तलब किए थे। नैब ने इमरान खान को केस के हवाले से दस्तावेजात साथ लाने की भी हिदायत की थी। इमरान खान के वकला की जानिब से नोटिस का जवाब जमा कराया गया है।
नासरीन, अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस ऐसी कहानी है जिसमें जाती मफाद के लिए कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। साबिक मुशीर मलिक अमीन असलम ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई के वाक़यात परेशान कुन हैं, ऐसे एजेंडे के साथ कोई पाकिस्तानी खड़ा नहीं रह सकता। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक मशीर मलिक अमीन असलम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। हसास तनसीबात पर बगैर मनसूबाबंदी हमले मुमकिन नहीं। मुल्क दुश्मन एजेंडा काबिल कबूल नहीं। उनका कहना था कि वक्त आ गया है कि मुल्क के खिलाफ साजिशें बेनकाब की जाएं। 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया। हमने अपने शुहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा, हमने MM आलम के जहाज को नहीं छोड़ा, हमने जहाँ जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। मुझे ये फैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मजीद नहीं चल सकता। मलिक अमीन असलम का कहना था कि इमरान खान ने हमेशा इदारों के खिलाफ ही बात की है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वर्करों को लिबर्टी मार्केट से निकाल के हमारे फौजी तनसीबात के घरों तक पहुंचाया। 8-10 किलोमीटर का वो सफर है, ऐसे तो मॉब नहीं निकलता। एंटी पाकिस्तान एजेंडा है जिसको फॉलो किया गया 9 मई को। मलिक अमीन असलम का कहना था कि मैंने बगैर किसी दबाव में आए पार्टी छोड़ने का फैसला किया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 7 साबिक अरकान असम्बली समेत दीगर रहनुमाओं ने इमरान खान की रियासत मुखालिफ पॉलिसीज पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार किया है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने 9 मई के शरंगेज इक़दामात की मजम्मत करते हुए पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जफरुल्लाह खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला मुजफ्फरगढ़ से 5, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मुल्तान और लिया से एक साबिक रुकन पंजाब असम्बली और खानेवाल से साबिक रुकन कौमी असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो मुल्क में शरंगेजी और जलाओ घराव की सियासत का मजीद हिस्सा नहीं रह सकते। मुल्तान से साबिक रुकन पंजाब असम्बली ज़हीरुद्दीन अलीज़ई का कहना था कि वो सियासत में आने का मकसद अपनी ही फौजी तनसीबात को निशाना बनाना नहीं था। आज तक दुश्मन की जुर्रत नहीं हो सकी कि वो इस किस्म की हरकत करे, और हम लोग ये काम करें कि अपना फौजियों को नुकसान पहुंचाएं, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, और शहीदों की जो यादगारों की जो बेहुरमती की गई है, हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ना कभी इस शर अंगेजी का हिस्सा हम पहले कभी थे और ना ही आगे होंगे। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPAs अशरफ रिंद, अब्दुल हई दस्ती, ओन डोगर, अलमदार कुरैशी और नियाज गशकोरी ने कहा कि 9 मई जैसे मजमूम व दिल खराश वाक़े की मिसाल मुल्की तारीख में नहीं मिलती। उनका कहना था कि हम रियासत व अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जो लोग बॉर्डर पे रह के हमारे बच्चों का ख्याल करें, हमारे बच्चों की जान और माल की हिफाजत करें,
ہم ان کے گھروں پہ حملہ کریں، میں سمجھتا ہوں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ 9 تاریخ کو جو واقعہ ہوا یہ میرے خیال میں ملک کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی عوام نے ان لوگوں پر اٹیک کیا ہو جو ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ صبر کنگ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں 10-15 سال سے بول رہا ہوں، اور آج یہ بات تشتزبام ہو گئی ہے کہ 60 امریکی اراکین پارلیمنٹ نے امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے خلاف ہونے والے اقدامات پر عمران خان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ان اراکین کی اکثریت یہودی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کل تک جو خط لہرا رہا تھا کہ مجھے امریکہ نے اقتدار سے اتارا ہے، آج اس کے لابیسٹ وہاں پر جو ان سے تنخواہ وصول کرتے ہیں وہ بھی یہودی ہیں، اور وہاں کی پارلیمنٹ کی اتنی بڑی تعداد جو آج اس کے حق میں خط لکھ رہی ہے، جو پاکستان کے معاملات میں براہ راست مداخلت کر رہی ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے اور کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک خاص منصوبے کے تحت ریاست کو تباہ کرنے کا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ عمران خان کو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے مظاہر گزشتہ 9 مئی کو اور 10 مئی کو ملک کے طول و عرض میں آپ نے دیکھے کس طرح اداروں پر حملے کیے گئے اور بلوائیوں نے GHQ، لاہور کور کمانڈر کا گھر ہو، قلعہ بالا حصار ہو، چکدرہ کا فوجی قلعہ ہو، اس کے اندر مسجد کے اندر قرآن کریم کے نسخے جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے جلائے، چوک پر لکھے گئے کلمہ طیبہ پر ڈنڈے برسائے گئے، کس سے بدلہ لینا چاہتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ جس عمران خان کو امریکی اور یہودی لابی تحفظ دینے کے لیے پگھل رہی ہے، اسی مجرم کو ہماری عدالتیں کیوں تحفظ فراہم کر رہی ہیں؟ ان کے دہشت گردوں کو ہماری عدالتوں سے کیوں سہولت کاری مہیا کی جا رہی ہے؟ بیک وقت تمام مقدمات میں ضمانت فلاں تاریخ پر فلاں تاریخ تک
अगर कोई नया मुकदमा दर्ज हुआ तब भी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। यानी हमारी अदालत से उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि अगर इस दौरान में वो किसी को कत्ल भी करेगा और उसके खिलाफ 302 का मुकदमा भी होगा तब भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। फौजदारी केसेस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक मामला चला गया है और इसके ऊपर पीडीएम ने जो एहतजाजी मुजाहरा किया और उस मुजाहरे के बाद भी अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो इसका माना यह है कि हमारी अदालतें बराह रास्त कौम के साथ और अवाम के साथ ऐलान जंग कर रही है। कहीं आपने देखा कि किसी मुजरिम को या उसके जुर्म को अदालतों से रियायतें मिली हो या उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया हो? इन फैसलों से तो ऐसा मालूम होता है कि एक शख्स के लिए, अपने लाडले के लिए हमारी अदालतें अपने मुल्क के आईन से भी खिलवाड़ कर रही हैं, अपने मुल्क के कानून से भी खिलवाड़ कर रही हैं और उसको रियायत देने के लिए न कोई आईन का एहतराम है न किसी कानून का एहतराम है। पहले सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस धड़ाधड़ से उनको जमानत मुहैया की गई, जिस तरह उनको रिहा किया जा रहा है, जिस तरह मुजरिमों के हौसले बढ़ाए जा रहे हैं, शायद इसकी माजी में कभी कोई ऐसी मिसाल मिलती हो कि आज तक रिमांड के दौरान किसी को जमानत मिली है। क्या किसी मुजरिम को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी जज के मर्सिडीज गाड़ी में उनको लाया गया है? वीवीआईपी गेट से उनको लाया गया आज तक किसी मुल्जिम और मुजरिम को? ये सारी चीजें हमारी अदालत के मुअज़्ज़ज़ चेहरे को दागदार कर रही है। हम समझते हैं कि एक खास एजेंडे के तहत पाकिस्तानी सियासत में एक गैर जरूरी अंसर को इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है जिसका साफ मतलब यही है कि हमारा एक इदारा या उनके कुछ जजेस वो रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। जब रियासत को कमज़ोर होते हुए हम देखेंगे तो फिर पाकिस्तान का एक एक बच्चा रियासत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आएगा। फिर उनको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अदालत मुहतरम है, अदालत की तौहीन हो रही है। आप रियासत की तौहीन करें, आप पाकिस्तान के अवाम की तौहीन करें, आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट की तौहीन करें, आप पाकिस्तान के हुकूमत की तौहीन करें एक मुजरिम के लिए, उसके घनाने जुर्म के लिए, और हम इस पर खामोश रहें। इस तरह की जमानतें और इस तरह का रिलीफ, ये तो बादी नजर में ऐसे ही लगता है जैसे आप इस तरह के बलवों को और रियासती इदारों और कौमी अमलाक को तबाह करने का जवाब खुद फराहम कर रहे हैं। अदालतें यहां आकर खड़ी हो गई हैं, उनकी ये ड्यूटी रह गई है। अब हम उनकी इस किरदार पर बहस करेंगे, चौराहों पे खड़े होकर बहस करेंगे। और फिर ये बातें भी सामने आएंगी। अभी हम नाम किसी का नहीं ले रहे। देखिए, ये बातें सामने आएंगी
कि कौन सा जज किस लॉबी से बराह रास्त वाबस्ता है, कौन सा जज मुजरिम के साथ बराह रास्त राब्ते में है। आज हम अभी उनके नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन तंग आमद व जंग आमद फिर हमें वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने लानी पड़ेगी। हम कोई आज पाकिस्तानी सियासत में नवारिद नहीं है कि कहीं आज हम सीख रहे हैं। शायद ये सब हमसे जूनियर हैं, कम से कम मुझसे तो जूनियर हैं सारे। अगर ख्वाजा तारिक रहीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को जमानत देने वाला जज मालूम था, तो क्या दूसरे लोगों को मालूम नहीं होंगे? उन्हीं को मालूम है क्या? आने वाले कल के फैसलों के बारे में जज का भी नाम लिया जाता है, उसके फैसलों को भी बताया जाता है और वहीं पे सामने आ भी जाता है। तो दुनिया इतनी गाफिल नहीं है, नहीं इतनी लाबलद है। 60 अमरीकी नुमाइंदगान की दस्तखतशुदा खत ने इमरान खान की बैनुल-अक़वामी पुष्तपनाहों और अदालती फैसलों के मकामी पुष्तपनाहों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया है। अब जो बलवे हुए हैं, जो नुकसानात हुए, कहते हैं ये हमारे लिए। अगर ये आपके लोग नहीं हैं तो इसका माना है कि आपके लिए फिर कोई बंदा निकला भी नहीं है। तो फिर तुम इस हवाले से तन्हा हो। न तुम्हारे लॉन्ग मार्च पर लोगों ने तवज्जो दी, न तुम्हारे जेल भरो की तहरीक पर तवज्जो दी, और अब भी 10-10, 15-15 और उससे ज़्यादा अगर हो सकता है तो 50 और 100 तक बलवाइयों ने जाकर जिस तरह मुल्क को जलाया है, इसके बाद भी ऐसी शख्सियत को और उसकी जमात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और फिर अपने आप को मुहिब वतन कहा जाएगा। इंशाअल्लाह हुब्बुल वतनी के जज्बे से हमने इन सूरत हाल का मुकाबला करना है। और मैं इतना ज़रूर बता दूं कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए, अवाम के सब्र और तहम्मुल का इम्तिहान न लिया जाए। ये सूरत हालात को अवामी ग़ैज़ व ग़ज़ब की तरफ ले जा रही है। तो हमारे अदालतें और हमारे जजेस जो इमरान खान की मोहब्बत में पिघल रहे हैं, इसको अपने मुल्क के मुस्तक़बिल की भी फिक्र करनी चाहिए। अवाम के जज्बात का भी लिहाज रखना चाहिए। हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम भी स्टैंड बाई हैं इंशाअल्लाह। और ऐसी सूरत हाल नहीं कि हम गाफिल हैं और इस सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह सूरत हाल का मुकाबला करेंगे जब तक कि हम महसूस न करें कि अदालत जो है वह गैर जानबदार हो। गुजारिश ये है कि इदारे टारगेटेड हुए, फौज टारगेट हुई, फिर सियासी जमातें टारगेटेड हुई, अब अदालतें जो हैं वो उसको घसीट के मैदान में लाया जा रहा है। किरदार अपनी जगह सबके सामने है। आप बता सकते हैं कि इस तमाम सूरत के बाद जो आने वाला एक मंजर है वो क्या होगा सियासी? देखिए, इससे न डराया जाए हमें। हमने इस तमाम तर बलवों, बगावतों जो मुल्क में हुआ उसका रद्द-ए-अमल भी दिखाया है। पुरअमन, बावकार, शाइस्ता सियासत, कहीं कुछ नहीं गया हुआ। मुल्क कंट्रोल में है, अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। चंद बलवाइयों का मुकाबला करने के लिए कौम तैयार है, हम तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इन बातों से ना कौम घबराएगी ना हम पर कोई असर पड़ेगा। सर बताइएगा कि सिविल एक्ट लगाने की बातें हो रही है, आर्मी अदालतों की बातें हो रही है, क्योंकि आपने हमेशा जमहूरियत की बात की है, क्या आप इसकी हिमायत करेंगे? दूसरी बात, जो पाकिस्तान तरीके से जो रहनुमा है उनके घर की ख़वातीन को भी उठाया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या करेंगे? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, मैं तो किसी को भी उठाए जाने या जेल में जे जाने का आदमी नहीं हूँ जी कि मैं सियासतदान की गिरफ्तारी पर खुशियाँ महसूस करूँ। बात बुनियादी ये है कि कानून की बालादस्ती, जो कानून मेरे लिए हो, जो नवाज शरीफ के लिए हो, जो शहबाज शरीफ के लिए हो, जो मरियम नवाज के लिए हो, जो जरदारी के लिए हो, जो फरियाल के लिए हो, अपोजिशन के लोगों के लिए हो,
आज वो कानून यहाँ पर क्यों मुअत्तल हो गया है। बात है कानून की बारदस्ती की। और एक आपने और बात कही, जहाँ तक आर्मी एक्ट का ताल्लुक है, हजरत जब अदालतों का ये हाल हो, सिविलियन अदालतों का, और हमले आर्मी के मराकज़ पे हो रहे हों, तो आप बताएं कि फिर उनका अपना एक्ट हरकत में नहीं आएगा तो किधर जाएंगे। मजबूर किया जा रहा है, वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, हम अवामी अदालत के तहत कार्रवाई करेंगे। आपने भी ये कहा आइन की बात आपने की, कानून की बात की, लेकिन इसी आइन और कानून को दफ़ा 144 को वायलेट किया गया जब आपका, चाहे वो पुरअमन एहतजाज हो, लेकिन जिस तरह से वायलेट किया गया, आप हमेशा से कानून की बात करते रहे। आप जाएं डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पूछें क्या हमारे वहाँ पर दफ़ा 144 की दरख्वास्त मौजूद है या नहीं, इतलाई दी जाती है ना। अगर वो उनकी तरफ से कोई रद्द अमल आता तो ये कहते हैं नामंजूर, जब नामंजूर नहीं था तो रात से खुले थे, ठीक है। और आपको पता है 8 अगस्त 2018 को हमने यहीं पर मुजाहरा किया था, उस वक्त भी। मौलाना साहब जो तोड़फोड़ हुई उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी हुई है, दर्ज भी हो रही है। जो लोग फौत हुए या जो लोग जख्मी हुए, क्या उनके लिए आप इंसाफ का मुतालबा करेंगे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए? मैं इसके जवाब और तरह देना चाहता हूँ। हमें इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारे लोग नहीं हैं, और गैबाना नमाज जनाज़ा भी पढ़ाया जा रहा है। ये तज़ादात हैं जी, और इस हवाले से हम तो इन पर अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन कानून उसकी गिरफ्त पे तो कोई भी आ सकता है जी। मैं भी मुस्तस्ना नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, तो फिर ये क्यों मुस्तस्ना हो गए हैं? मौलाना साहब कौमी सलामती कमेटी ने, मौलाना साहब कौमी सलामती कमेटी ने जो एलामिया जारी किया, उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक ये था कि आपस में बातचीत करके जो भी है इस्तेहकाम लाया जाए, एक बात ये थी। दूसरी थी कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन को ट्रायल किया जाए। क्या आप इन दोनों की हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं? मैं तो मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करूँगा, किससे बात करें। सारी पार्टियां हुकूमत में हैं और सारी पार्टियां एक पार्टी को, एक बंदे को राज़ी करें, ये कौन सा तुक है जी। अगर मुज़ाकरात हुए थे तो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी पार्टी की हुकूमत थी, और वो पूरे PNA को, जो तमाम पार्टियों का इकट्ठ था और छोटी छोटी तंजीमें उनके साथ तहरीक में वाबस्ता थी, उनको आमादा करना था। यहाँ पर सारी पार्टियां जो है एक तरफ हैं, एक बंदे को राजी करने वाली बात है, तो उससे इसको कयास नहीं किया जा सकता जी। सिविलियन अगर फौजी मराकज पर हमला करेगा तो फिर क्या करेगी फौज, जब इधर से अदालत उसको छोड़ रही है तो वो क्या करेंगे। अमरीकी इदारे ने मजहबी आज़ादी के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें PDM की गवर्नमेंट और आपका भी जिक्र है कि आप इमरान खान और उसकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात ये कि जब आप इमरान खान के साथ, जब आप अपोजिशन में थे और सियासी लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त उसके फौज उनके साथ थी और आप उसको शिकस्त देने में नाकाम थे। आज जो क्रैकडाउन उनके खिलाफ है, मिलिट्री कर रही है मिलिट्री अदालतों में, तो क्या आप नहीं समझते कि आप सियासी लड़ाई के बजाय उसी चीज़ पे आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैक डाउन कर सके? मैं आपको वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि सारों की इकट्ठ के बावजूद वो हमारी तहरीक को नहीं दबा सका, और उसका नतीजा ये निकला कि बिल आखिर उसको जाना पड़ गया। तो आखिर में असबाब क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, लेकिन एक तहरीक थी जिसके लिए उनके तमाम जो उनके फेवर में जर्नल्स थे वो सब इकट्ठे थे, और हमने उस तिलिस्म को तोड़ा और इस्तकामत के साथ तोड़ा। एक लम्हा के लिए हमने गफलत का मुजाहरा नहीं किया है। तो ये चीज़ें जो हैं, आज वो शख्स जो है वो अकेला एक झूठ पे मबनी बयानिए के साथ लड़ रहा है, उसकी कोई अवामी हाँ, जहाँ तक मज़हब की बात है, मज़हब एक हकीकत है, दीन इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है। अगर कुरान और सुन्नत वो हो जो 1400 साल से तवातुर और तामुल के साथ हम तक पहुंच रहा है, वो तो कबूल नहीं है। लेकिन अगर उसकी कोई गलत तशरीह और ताबीर करता है, नित नई ताबीरात करता है, चाहे वो किसी सूरत में हो, अहमदियों के, कादियानियों के, जिस शक्ल में भी हो, वो मजहब उनको क्यों कबूल है? मजहब की गलत तशरीह, मजहब का चेहरा बिगाड़ना, उस सूरत में तो मजहब उनको कबूल है। लेकिन मजहब अगर अपने हकीकी माने और ताबीर के साथ हो तो वो उनको काबिल कबूल नहीं है। उनको बताना चाहता हूँ, अमरीकियों, हम मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे,
हम बबांग दोहल आपको बताना चाहते हैं कि मजहब हमारा काज है और उसके लिए हम लड़ेंगे। वो ये है सर कि एक तो ये बताएं कि बहुत से पीटीआई का जो मरकजी रहनुमा है वो भी 9 मई की उसकी मजम्मत करना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे फवाद चौधरी साहब है और कुछ लोग हैं। एक ये दूसरा, कुछ लोगों ने पीटीआई छोड़ दी है, क्या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या वो अपने ज़मीर की बात पे छोड़ रहे हैं पीटीआई? तो वो इन ताबू असलहों के ज़िम्मे में आ जाएंगे। मौलाना साहब ये फरमाएं, लोग ये पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पहले 13 दिन रहे थे, फिर कुछ दिन और 13 घंटे रहे। इस दफा हफ्ते का नुस्खा लोग समझ बैठे थे कि हफ्ते का नुस्खा होगा, ये हुआ क्या? धरना फौरन खत्म क्यों किया? ये लोग सवालात पूछ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बताएं। मेरे ख्याल में बहुत मुख्तसर नोटिस पर लोग आए थे और उन्होंने अपना मकसद एक ही दिन में हासिल कर लिया था। जब अदालत ने अपना केस जो है वो 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया और सूरत हाल एक बेहतर सिमत में लोगों को नज़र आई, तो फिर खामखा लोगों को बिठाए रखने का तो माना नहीं होता ना। कॉज के लिए होता है, एक मकसद के लिए होता है, अगर वो 10 दिन में हासिल हो, महीने में हासिल हो या 10 घंटों में हासिल हो। हमने बहुत से मकासद एक ही दिन के अंदर हासिल कर लिए और एक ऐसे किरदार के साथ कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। मज़हब कार्ड और मज़हब कार्ड और मज़हब कार्ड, ये चीज़ें जो हैं हमसे सीखो कि मज़हब कितना पुरअमन है, मज़हब कितना मुनज़्ज़म है, वो सोसाइटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है, किस तरह ज़ब्त देता है। बस अगर कोई 2-4 आदमी 22 करोड़ में से वो बंदूक उठा लें तो बस उसकी ताबीर दुनिया में पहचान कराई जाती है, और जो दुनिया एक तवातुर के साथ एक किरदार के साथ पब्लिक के सामने है, दुनिया के सामने है, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं। हमारा इस पर दुनिया के साथ जंग है, न हम इंतहा पसंद हैं। हमारे आपने 14 मिलियन मार्च भी देखे, हमारा आज़ादी मार्च भी देखा, उसका नज़्म ज़ब्त भी देखा, उसका अमन अमान भी देखा, किस तरह हमने इंसानों की ही नहीं बल्कि दरख्त को भी तहफ़्फ़ुज़ किया, गमलों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, कल हमने कोर्ट की क्यारियों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। तो इस तरह के लोग आपको नहीं मिलेंगे। हम एहतजाज भी करते हैं, डराले से करते हैं, खौफ कोई हमारे आपस में नहीं था, लेकिन मुनज़्ज़म लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, और इससे हमें न डराया जाए कि मज़हब है और मज़हब है। मज़हब है, मज़हब एक हकीकत है, मज़हब की जगह है, और तुम मज़हब की जगह को ख़त्म करके उसको कहोगे ये काट, कोई काट नहीं है, हमारा काज है। तो वो गलत है, लेकिन अगर दफ़ा 44 में आप जो है आपको जो इसलिए इंतजाम में हिदायत भेजे तो वो ठीक है, क्या ये तज़ाद नहीं है कानून से? ये उनका मसला है, मेरा मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जी, हमने अवॉइड नहीं किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सरबराह पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को ख़त लिखा है और उस ख़त में कहा गया है कि इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुल्की मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 9 और 10 मई को जो हुआ उसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। इमरान खान को एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ, बुलवाइयों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। चंद 100 बुलवाइयों का मुकाबला करने के लिए कौम का बच्चा तैयार है। रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अमरीकी खत से वाज़ेह हो गया है कि मुल्क में किस एजेंडे की तकमील के लिए इमरान खान को लॉन्च किया गया। मुल्की मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्की मामलात में इमरान खान को मुदाखलत के लिए लॉन्च किया गया। 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। पूरी कौम ने देखा कि बुलवाइयों ने किस तरह कौमी इमलाक पर हमले किए। साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी किया कि अदलिया की जानिब से इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम किया जा रहा है। जुर्म और मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से ऐसी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को राय देने के लिए आइन और कानून का मजाक बनाया जा रहा है। ख़ास एजेंडे के तहत मुल्क की सियासत में इस गैर ज़रूरी अंसर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। नौ मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। बलूचिस्तान के अवाम इमरान खान के घिनौने जुर्म को कभी माफ नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान के अरकान पार्लियामेंट के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। तफसील बता रहे हैं मीर सलाम जोगी से।
इमरान खान की क़यादत और हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दहशतगर्द 9 मई को मुल्क के अहम इदारे की इमारतों पर हमलावर हुई, जिस पर सारा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। 9 मई जो कि हमारी सियासी तारीख में हम समझते हैं कि एक स्याह तारीख दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। पाकिस्तानी नेशनलिज्म है, उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा हम डालें। इमारतों को ऊपर हमला आवर होना इतनी बड़ी हरकत है कि जिसको पूरे पाकिस्तान में कंडेम भी किया जाए, उसे मजमूम भी गर्दाना जाए। इसलिए है कि रियासत के अपने इस्तिहारे होते हैं। इस वजूद के इस्तिहारों पे कोई भी हमला आवर होता है तो कोई जिंदा शय एंटिटी वो उसका दिफा करती है। इमरान खान ने मुख्तसर दौर में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और अब कुछ ही दिनों में इनकी पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये जो कुछ हमारी इम्पोर्टेंट इमारत को जो आग लगाई गई या तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने सबको नुकसान पहुंचाया है। आप अपने कैबिनेट मेंबर्स, अपनी पार्टी के लोगों को लेकर नहीं चल सकते, तो उसका नतीजा आज ये नजर आ रहा है कि आज आपके अपने पार्टी के लोग आपकी सपोर्ट में नहीं है और पार्टी छोड़े। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।